नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् रूपमोहि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसु मङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथास्ति स्वभावाय भवाय विभाव અધિકાર પાંચમો કળશ છે ને નીચે એનું 8મું પદ છે. બસ એને 48 પાનું 248 કાલે બોલાઈ ગયું છે ફરીને. ज्ञानी कर्म के कर्ता भोगता नहीं है. इसका कारण शा कारणे धर्मी રાગ આદિનો કરતા ને ભોગતા નથી એનું કારણ બતાવે. અજ્ઞાની શા કારણે કે રાગનો કરતા ને ભોગતા થાય એ આનાથી વિરુદ્ધ દ્રષ્ટિએ થાય એ પછી કે છે. ચિહ્ન મુદ્રાધારી ધ્રુવ ધર્મ અધિकारी गुण रतन भंडारी अपहारी कर्म रोग को प्यारो पंडितन को होशियारो मुख मार्ग में न्यारो पुद्गल सौ उजियारो उपयोग को जाने निज पर तत्व रहे जग में विरत गहे न ममत मन वचन का योग सो ता कारण 11 बोल कया ता कारण ज्ञानी ज्ञानावरणादि कर्म को करता न हो भोगता न हो भोग को. प्रभु ये છે કે ધર્મી જીવની દ્રષ્ટિ ચૈતન ચિહ્ન એ તો ચૈતનના લક્ષણને ધારનાર છે. રાગ ને શરીર એ મારા છે એની માનતા હોતી નહીં. બરાબર. જો આ સમકીથી ચોથા ગુણસ્થાન ચેતન ચિહ્ન મુદ્રાધારી જેનું ચૈતન લક્ષણ છે એ વળી લક્ષિત આત્માને કરે છે ધર્મી. બરાબર. પુણ્ય પાપના પરિણામ કે પર વસ્તુ એનાથી આત્માનું લક્ષ થાય છે એમ ધર્મી માનતો નથી. બરાબર. એ તો ચૈતન નો પિંડ છે. ભગવાન આત્મા સમજને ચૈતન નો તો સાગર છે. એ ચૈતન જેનું મુદ્રા લક્ષણ છે અને ધ્રુવ ધર્મ અધિકારી સમ્યક દ્રષ્ટિ ત્રિકાળી ધ્રુવ સ્વભાવ નિત્ય એનો એ સ્વામી છે. સંયોગ અને રાગ નો એ સ્વામી નથી. ધ્રુવ ધર્મ અધિકારી અર્થમાં લખ્યું છે કે નિત્ય સ્વભાવનો સ્વામી. ધ્રુવ કહો કે નિત્ય કહો. અજ્ઞાની એનાથી ઉલટો એ પુણ્ય ને પાપના કર્તવ્ય કરનારો એ મારું કર્તવ્ય છે એવા લક્ષણ વાળો અને એની બુદ્ધિ રાગ અને પર્યાય ઉપર હોય છે અજ્ઞાનીની. જ્ઞાનીની બુદ્ધિ ધ્રુવ ધર્મ ઉપર હોય છે. નિત્યાનંદ સ્વારમાં ઘણું આવ્યું છે આજે. પરમ સ્વરૂપ ભગવાન અવિનાશી નિત્ય ધ્રુવ અંશ નહીં છે ને. નહીં નો વિષય અંશ છે પણ એક સમયની પર્યાય નો અંશ એ નહીં. ધ્રુવ નિત્ય ભગવાન આત્મા અવિનાશી શુદ્ધ
वो સન્મુખ જેની દ્રષ્ટિ છે, ચાહે તો લડાઈ આદિની ક્રિયામાં દેખાય, ખાવા પીવાને બોલવામાં દીખને में આવે, છતાં ધર્મીની દ્રષ્ટિ તો ધ્રુવના સ્વામી પણ છે. બરાબર. ક્યાંય હું પત્નીનો પતિ છું કે દેશનો સ્વામી છું, રાજનો સ્વામી છું, નોકરનો શેઠ છું, એવી બુદ્ધિ સંકિતી જ્ઞાનીની હોતી નથી. સમજાય છે કાંઈ? હા પ્રભુ. આ 5મા કલશ અમૃતચંદ્રાચાર્યનું છે, એનું આ પદ છે. ગુણનો રતન ભંડારી. ભગવાન આત્મામાં અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત આનંદ, એવા અનંત ગુણનો રતનનો ભંડારી તો છે. એના ભંડારમાં અનંત ગુણ પડ્યા છે. એ રાગ ને પર ને લક્ષ્મીનો ભંડારી ધર્મી છે. આ ભંડારી જો તમારા પૈસાનો ભંડારી કહે છે ને તમને બધાને, પૈસા વાળા છે, ધૂળ વાળા છે, એનો અર્થ ધૂળ વાળા છે. વ્યવહાર કા ભંડારી એટલે મિથ્યા દ્રષ્ટિ. વ્યવહાર રાગ का स्वामी હોય તો भी मिथ्या दृष्टि, પછી लक्ष्मी की तो क्या बात रही. बात ऐसी है प्रभु, ये तेरी चीज गुण रतन भंडारी, अनंत अनंत ज्ञान दर्शन आनंद, એવા તો આનંદ ગુણો સંખ્યાએ છે. ગુણ રતન ભંડારી. ઘણી વાર કહ્યું છે ગુણ કેટલા અનંતા. કેટલા અનંતા કે 6 મહિના ને 8 સમયમાં સિદ્ધ થાય, 6 ને 8 એવો સિદ્ધાંત છે ને. 6 મહિના ને 8 સમયમાં 6 ને 8 મુક્ત પામે. એ અનંત કાળ થયો, અનંત ભૂતગળ પરાવર્તન. એની જે સંખ્યા સિદ્ધની થાય એના કરતા એક આલુની કટકી રાય જેટલી, આલુ કહેતા ને બટાટા, हमारे बटाटे हमारे आलू कहते हैं ना, आलू प्याज लहसुन एक राय जितनी कटकी टुकड़ा, उसमें असंख्य उदारी शरीर और एक शरीर में सीध अभी तक हुआ उससे अनंत गुणा अधिक. समझ में आया? ये तो ज्ञानी पर्यायनी इतनी ताकत है कि इतना ज्ञानी को भी जान ले, ऐसी बात है. समझ में आया? ये जीवनी संख्या संसारीनी सिद्ध करता अनंत गुणी, उससे परमाणु अनंत गुणा रजकन. जीवनी संख्या करता आ परमाणुनी संख्या अनंत गुणी. आ एक जीवना अनंत रजकन, ये बात अनंत जीव की अनंत गुणा रजकन है. भूतगल अनंत गुणा है और उससे 3 काल का समय अनंत गुणा है. एक कड़बुल है, उसमें असंख्य समय चला जाता है काल का. ऐसे 3 काल का समय उद्गल की परमाणु की संख्या करता अनंत गुणी संख्या है. हाँ तो गुण कितना ही कहते थे, તમારા રૂપિયા कितना હોય, 8 लाख 30 लाख 80 लाख करोड़पति कहता हो ने. आ 10 करोड़ आने हो रहे 5 करोड़. समझ में आया? आई तो कहते हैं कि पुद्गल परमाणु की संख्या करता 3 काल का समय अनंत गुणा, अनंत गुणा, और उससे आकाश का प्रदेश अनंत गुणा. आकाश है ना, एक पॉइंट मुख्य रजकण जितने में प्रदेश के में आता है, ऐसा आकाश सर्वव्यापक, अंत नहीं कहीं. ऐसा आकाश का प्रदेश की संख्या अनंत गुणी काल करता है, और उससे अनंत गुणा एक आत्मा में गुण है. वो आकाश का प्रदेश से भी अनंत गुणा एक जीव में गुण है. ऐसे धर्मी तो गुण रतन भंडारी है.
आया? जिसकी दृष्टि में ध्रुव पड़ा है तत्व, तो ध्रुव में समानंद गुण है। एम कहते हैं। ये राग का स्वामी के राग करूं, ऐसी बुद्धि संकीर्ति को होती नहीं। हो जाए राग, पर उसका कर्ता मैं रचूं, ये बुद्धि संकीर्ति की नहीं। समझ में आया? पंडित जी, ऐसी है वस्तु। हाँ। करूं और हो जाए तो हो जाए दूसरी बात है, मैं रचूं दूसरी बात है। आ जाए पुरुषार्थ की कमी से तो उसका ज्ञानी ज्ञाता रहते हैं, दृष्टा रहते हैं। रचना मेरी है ऐसा है मानते नहीं। साचो प्रभु, समझ में आया? गुण रतन भंडारी, 3 बोल हुआ। कितना बोल हुआ? 3 चिन्ह मुद्राधारी, ध्रुव धर्म अधिकारी, गुण रतन भंडारी। अज्ञानी नो मार्ग तो राग ने पुण्य पाप नो ये मार्ग उसका है। एनी पास गुण रतन है। अपहारी कर्म रोग को तो बोल, सम्यक दृष्टि ध्रुव पर नजर होने से ये कर्म का रोग तो नाश हो जाता है। चौथे गुण संत है, मलिनता का नाश न आज कर्म का भी नाश होता है। समझ में आया? अपहारी कर्म रोग को, है नहीं? कर्म रोग का नष्ट करने वाला। प्यारो पंडितन को, धर्मी ज्ञानी को प्यारो लगते हैं, अज्ञानी को तो ठीक लगता है। समझ में आया? पंडित नाम ज्ञानी संकीर्ति को ही संकीर्ति प्यारा लगता है, अज्ञानी को तो अरे क्या मारी ने ऊंधा मारे सबे पंडित जी व्यवहार का लोभ कर देते हैं। व्यवहार ऐसे अज्ञानी को तो प्रिय नहीं लगते हैं। बराबर समझ में आया? आप प्रभु कभी का भाई प्यारो पंडितन को, ज्ञानी को ज्ञानी प्रिय है, अज्ञानी को ज्ञानी प्रिय नहीं लगता। होशियार हो मुख मार्ग में, होशियार हो, होशियार का क्या क्या है? कुशल प्रवीण। ये मोक्ष मार्ग में धर्मी प्रवीण है, दुनिया की चीज में प्रवीण की बात यहाँ है नहीं। समझ में आया? प्रभु होशियारो प्रवीण डायो कुशल, मोक्ष मार्ग में कुशल है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उसमें कुशल है। बराबर राग में संसार का धंधे में कुशल है नहीं। जो वकीलात में कुशल नहीं हम कहते हैं। वकील છે ને એને ખબર છે ને ભોજન કર્યું છે आत्मा की वकील की तो कह दे। हाँ, आत्मा की वकील की चलती है। वो भोजन करने को गए थे, वो पहले गए थे तो उसकी मेड़ी पर, मेड़ी क्या मंजल खबर है ना? हाँ, बहुत काम करते हैं, काय करते नहीं, अभिमान करते हैं। आई तो कहते हैं होशियारों मुख मार्ग में। संसार का दापन में होशियारी हो न हो उसकी साथ संबंध। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये सम्यक दर्शन अपना पूर्णानंद स्वभाव के आश्रय से होता है और समसंवेदन ज्ञान भी अपना द्रव्य के आश्रय से होता। वो ज्ञान कोई परसे आश्रय से होता। संकीर्ति ऐसे मानते हैं कि वाणी सुनने से न वितराग की वाणी से भी मेरे ज्ञान प्रकट होता है, ऐसा नहीं मानते हो।
क्यों आए हम यहाँ? विकल्प हटाया, सुनने में विकल्प है, ये व्यवहार बीच में आया, पर उससे ज्ञान होता है, ऐसा नहीं। बात तो ऐसी है। बराबर। लोगों को क्या कहते हैं, देखो ने, होशियारों मोक्ष मार्ग में अपना ज्ञान अपने से प्रकट हो, उसमें होशियार कुछ है। बराबर। पर की अपेक्षा रखकर हमने ज्ञान होता है, ऐसा संकेती मानते नहीं। हाँ जी। और चारित्र अपना स्वरूप आनंद में रमना, लीन होना, वो चारित्र बराबर। ऐसे एक संकीर्ति उसमें कुछ और है। जी हाँ। स्थिरता विशेष बल न हो, पर मेरा स्वरूप में रमना हो चारित्र है, ऐसा कुछ और है। साधु प्रभु। पुण्य पाप का परिणाम चारित्र है, व्रत चारित्र है, वो संकीर्ति मानते है कि नहीं? उसमें हाँ, अंदर लिखा है। ज्ञानी लोगों का प्रिय मोक्ष मार्ग में कुशल, नीचे अर्थ है ना, पाठ है ना अंदर में, क्या भूल तो है पाठ में। इतने ज्ञानी तुम प्रकृति स्वभाव विरतो न जा तुम चित्त विवेक करो, उसमें सब निकाला है। समझ में आया? कहते हैं कि होशियारों मुख मार्ग में न्यारो पुद्गल सो, कुशाओ, ये छठा बोलूंगा। शरीर आदि पुद्गलों से पृथक है। राग का विकल्प से पृथक है धर्मी, राग तो पर है। बराबर। समझ में आया? सवेर में तो पर्याय को परद्रव कहा था। सारना सार जाता थी वो। बराबर। देखो आया ने करना बुद्धि महाराज। हाँ, ऐसी चीज है। भाषा चोखी थी अंदर। हाँ, जैसी रेको नहीं चला, भाषा चोखी, नहीं तो कितनी बार नहीं चले। महाराज बोलते हैं रेको की खबर नहीं पड़ी हमारे पन्ना में, आंखें ठीक नहीं बराबर। कैमरा जी का भाई कहते थे समझने का कौन बोले से आंख में एक दिन आज आंख वाली इसमें। शरीर आदि पुद्गलों से पृथक भगवान आत्मा द्रव्य स्वरूप जिसकी दृष्टि हुई, ऐसा संकीर्ति राग ने पुद्गल से समझा है। बराबर। ये स्त्री कुटुंब में पड़ा छता उससे न्यारा है, उसमें वो है नहीं, आत्मा में। समझ में आया? प्रभु। पुद्गल सो न्यारा उजियारो उपयोग को ज्ञान ने, दर्शन मति ज्ञान ने, शुद्ध ज्ञान ना प्रकाश करने वाला है। दूसरा हो न हो दूसरी बात, अवधि मन प्रिय समझे। ज्ञान दर्शन ना प्रकाशक, सम्यक ज्ञान मति ने सूचना प्रकाशक करने वाला है, एम कहते हैं। दूसरा ने बताने वाला है, ऐसा या नहीं? बराबर। दूसरा को प्रकाश कर दे, बता दे, ऐसा नहीं। ये तो मानिए घर है, कौन बता दे? भारी काम क्या तो अपना ज्ञान दर्शन का प्रकाशक है। साधु प्रभु। स्वभाव चैतन्य भगवान, उसके अवलंबन से जो मति शुद्ध ज्ञान हुआ, उसका वो प्रकाश करने वाला है, उसका प्रकाश करने वाला है। 8 बोलूंगा। 8 जी हाँ 8। जाने निज पर तत्व, 9 जाने निज पर तत्व, संकीर्ति निज स्वरूप क्या है ना, राग आदि पर क्या है, उसको विवेक अंदर हो गया है। व्यवहार भी पर तत्व है, शुभ उपयोग है ना, ये पर तत्व है। भगवान आत्मा ज्ञाता दृष्टा ही स्वतत्व है। ऐसा संकीर्ति धर्मी जी चौथे गुण स्थान में ऐसा विवेक पर से भिन्न भेद ज्ञान हो गया।
पीछे जग में विरत, 10वां बोल। जी हाँ ये संसार से विरत है, हाँ जी उदय भाव आदि संसार से तो भिन्न है। राग में रत नहीं, जी उदय भाव संसार है। साधु प्रभु संसार कोई स्त्री कुटुंब परिवार नहीं। नहीं जी नहीं संसार संसरणमिति संसार हो, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप से हटकर राग ने विकल्प में आना वो संसार है। समझ में आया? शांति का मार्ग है भैया। बराबर अनंत काल से जन्म जरा मरण करके चले गए 84 अवतार में। દરકાર કરતી નથી માટે બોલી કેમ બેસી જાય ખેતીની દરબાર કે 25,000 ની પેદા ત્યાં ખરામ ગલગલિયા થઈ જાય રૂચિ છે ત્યાં દરબાર जी हाँ प्रभु ત્યાં દરબાર પૈસા છોકરો હારી બાબરામાં બરાબર કામ કરે કામ કરે તો ખુશી થઈ જાય અંદર જેના ઉપર रुचि તેની અને પ્રસન્નતા છે। हाँ जी આત્માની रुचि હોય તો આત્માની પ્રસન્નતા હોય। नमस्ते प्रभु रुचि अनुयायी वीर्य ऐसा शब्द है। हाँ जी जिसकी जिसमें रुचि हो चित्र उसका पुरुषार्थ वीर्य गति करते हैं। जी हाँ रुचि अनुयायी वीर्य, रुचि जो स्वभाव सन्मुख है तो वीर्य पुरुषार्थ वो सन्मुख काम करते हैं। राग ने पुण्य में रुचि हो तो वीर्य वो सब काम करते हैं। हाँ जी समझ में आया? हाँ जी साधु प्रभु वस्तु स्थिति स्पष्ट प्रत्यक्ष है। नमस्ते आ चीज है। એ પણ વિતરાગ માર્ગ સિવાય આ માર્ગ ક્યાં બીજે હોતો નથી। કોની આરે સમન્વય કરે? देखो तो खरा जिसको जगत से विरत, राग में रत नहीं, हाँ जी संसार से विरत, बराबर वो पर्वत संसार में ले आए। संसार किसको कहते हैं? संसरणमिति संसार। जी हाँ चिदानंद भगवान ध्रुव आनंद कंठ से हटकर संसरण कसकर राग ने पुण्य को अपना मानना वो मिथ्याति संसार है। जी हाँ ये आमा लिख्યું છો। આ છઠ્ઠી છે ને કવચ, છઠ્ઠા કવચ મારે છો। અમારે અર્થમાં નહીં આવતું હોય। ક્યાંક લખ્યું છે મિથ્યાથી સંસાર है। वो छठो कौन આવશે ને ભયા? સહી મુક્ત એવો ત્યાં કેમ છે? છઠ્ઠા કવચ है ये तो मुक्त ही। वो 9वां श्लोक कवच है ना, नीचे है छठा, उसमें 9वां पद है साधक सिद्ध सम। साधक तो सिद्ध सम है, मिथ्या तो वही संसार है। बराबर समझ में आया? जी हाँ प्रभु लिखूं सर नहीं तो पहला नहीं। हाँ तो आमा 9 છે ને પદ, એમાં મિથ્યા લખ્યું છે, આમાં લખ્યું નથી। ક્યાંક છે ખરું મિથ્યા સંસારો હોય। हाँ हाँ अटापटी ये दोनों आते हैं ना सर्व शुद्ध दिखा जे ही अंध आप મિથ્યાથી સંસાર છે એમ સેક્શન લખે। આપણે બીજા બીજું છે તો આ તો હવે નામ ક્યાં છે? ઘણા પુસ્તકો છે એમાંથી ક્યાં લખી? હા લક્ષ્મણ છે ક્યાં? पहले तो आगे आए जाहिर खाओ मिथ्याते आश्रम ने बंद है। पहले आगे आए आप आमा संकीत है वो संबर जरा ने मोक्ष है।
जाए प्रगट हो के विपरीत मान्यता हो ही संसार बंधन आसव है और सम्यक दर्शन हो ही संबर निद्रा में मोक्ष है। उकेगा छठा नीच पर तत्व का ज्ञाता है, संसार से विरक्त है। मन वचन काय युगों से ममत्र रहित होने से, ये 11वां बोल। मन वचन ने काया ना योग से ममत्व रहित है। मन वचन काया तो जड़ पर कंपन जो है अंदर, उससे भी ज्ञानी तो ममत्व रहित है। कंपन तो दोष है, दोष तो रहित ज्ञानी है। ऐसे कारण से ये मैंने ममत्व रहित होने के कारण ऊपर ही बताया था ना, ज्ञानी कर्म के करता भक्ता नहीं, इसका कारण क्या? आकारण। हजार प्याला है भाई जी। मार्ग ऐसा है, कहते हैं ता कारण ज्ञानी ज्ञानावरण आदि कर्म को करता न होई। आ कारण है, करता નથી પણ કેમ કરતા નથી? કર્મનો કરતા નથી, પરનો કરતા નથી, क्या कारण है? कि चिन्ह मुद्रा आदि धारी 11 बोलने कारणे परनो करता નથી है। समझ में आया? प्रभु अज्ञानी अज्ञान ना राग ने पोताने मानने कारणे जे चीज को अपनी मानते हैं, अपने से भिन्न नहीं मानते, तो उसका कैसा होता है? यूं कारण है, वो कारण है, वो आगे कहेगा 10वां पद में आई अज्ञानी की बात। समझ में आया? प्रभु सत्यपन जैसा है ऐसा समझना चाहिए। बराबर समझ में आया? ऐसे न ऐसे बहुत बन जाए पड़ जाए शास्त्रादि, पर मूल तत्व की क्या चीज है और तत्व में क्या चीज नहीं है। निश्चय में व्यवहार नहीं, व्यवहार में निश्चय नहीं, वे तत्व भिन्न है। बराबर समझ में आया? ऐसा कारण निज ने पर तत्वना ज्ञाता के कारण, संसार विरक्त के कारण और मन वचन काया ना ममत्व रहित के कारण, अपना आनंद गुण का भंडार ऊपर जिसकी दृष्टि है, क्या मारा पड़ा है? योग का में मारा पड़ा। ऐसे ज्ञानी जीव ज्ञानावरण कर्मों का करता, आ कारणे धर्मी करता है नहीं, एम सिद्ध किया। समझ में आया? जी हाँ प्रभु। आ कारणे धर्मी जीव पर का करता है नहीं, क्योंकि पर से भिन्न अपना स्वरूप का भान, ज्ञान का प्रकाश, प्रवीण आदि कारणे, योग की ममता के रहित के कारणे ये पर का करता अने ये राग का भोगता आ कारणे नहीं। समझ में आया? बहुत दिन बात है। अरे राग तो 10वां गुण संस्कृति रहते हैं, आय के चौथे गुण ने करता न भोगता नहीं है। राग के स्वभाव में आ रहे थे, स्वभाव से भिन्न रहते हैं। 10 में हो, 10वां तक हो, पर भिन्न है, तत्व ही भिन्न है न। या असर तत्व है, आत्मा ज्ञानिक तत्व है। ऐसा स्वतत्व पर तत्व का भिन्न जाया, ऊपर तत्व का करता होता। आगे बात है पूनमचंद जी, कैसी बात है? बहुत सूक्ष्म लगे, उन्होंने बधाने सारू लगे, सब धर्म सरखा है, ऐसा है ऐसा सारू लगे सबको। सर्वज्ञ वितराग परमेश्वर त्रिलोकनाथ, उसने एक का वही एक मार्ग सत्य है, दूसरा के साथ मिलान करना वो
मिथ्यात भाव है। समझ में आया? सब धर्म सरखा, ये मानना विनय मिथ्यात है। पंडित जी, विनय मिथ्यात है, बात मिथ्यात है ना, तो विनय मिथ्यात है। हमारा भी सच्चा है, सर्वधर्म सरकार विनय मिथ्यात है। और पंडित जी आज खुलासा कर रहे जाते हैं, विनय मिथ्यात है। वो भी सच्चा, वो भी सच्चा, वो भी सच्चा। एक सर्वज्ञ परमेश्वर है कहा, आत्मा वो ये एक सत्य है। ये आत्मा सर्वज्ञ शिवाय दूसरे ऐसा दिखा नहीं। संकेती जानते हैं, सर्वज्ञ ने पूर्ण देखा है। बराबर। अज्ञानी अल्पज्ञानी बातों करे आत्मा की, ऐसा आत्मा ने ऐसा मतलब चंकार हो सके नहीं। क्योंकि भगवान आत्मा ही सर्वज्ञ स्वभाव ही है। बराबर। एना स्वभाव सर्वज्ञ शक्ति है, सत्ताली शक्ति है ना, सर्वज्ञ स्वभाव है। एक एक आत्मा का सर्वज्ञ गुण पड़ा है। मैं कहा ना, रतन गुण रतन भंडारी, तो उसमें अनंत ज्ञान सर्वज्ञ शक्ति भी प्रतीत में आ गई है। बराबर। संकेती को सर्वज्ञ शक्ति, सर्वज्ञ में सर्वज्ञ गुण वाला हूँ, मैं सर्वज्ञ दर्शन वाला हूँ, मैं आनंद आनंद वाला हूँ, ऐसा अंदर प्रतीत अनुभव में संकेत आ गया है। बराबर। समझ में आया? प्रभु। तो सर्वज्ञ शिवाय कोई आत्मा को अल्पज्ञादी कहे, पूर्ण न कहे, तो आत्मा को जानते हैं। समझ में आया? ये 8वां कलश, वो 6ठा कलश आ बाजू नीचे। ज्ञानी करोति न वेदयेत च कर्म। હવે સિદ્ધ કરે છે, જાનાતિ કેવલમ અયમ કિલ તત સ્વભાવમ जानन परम करण वेदयो अभावात् शुद्ध स्वभाव नियत सही मुक्त एव। शुद्ध स्वभाव नो अनुभव है, माटे मुक्त एम कहते हैं। ये 6ठा कलश, उसमें उसका बहुत टूका लिया है। निरभिलाष करणी करे અને ભોગય रुचि घटुमाय। करता भोगता खुलासा करते हैं। निरभिलाष करणी करे, राग आवे खरो, पुण्य होय खरो, पर अभिलाष में ना। इच्छा नहीं, इच्छा की इच्छा नहीं, राग का राग नहीं। राग आते हैं पर राग का राग नहीं। बराबर। है राग का प्रेम नहीं, रुचि नहीं। रुचि ज्ञाता दृष्टि की है। બધું કરે કરણ ભાષા અભિલાષ કરણી करे समझा जाए। करण अर्थ करे तो बस करता तो निषेध करना है, समझाना है न। राग रूप परिणमन होता है पर उसकी अभिलाषा नहीं। ठीक है, ऐसी दृष्टि इच्छा है। ये वाली दूसरी करे न, जिसमें अभिलाष न रखे, करता था न अभिलाषा न हो। अनासक्ति योग कहते हैं न, करना आसक्ति नहीं रखना, ये बात तो झूठी है। अनासक्ति योग चला है कि नहीं? झूठ बात है। पर का करना वही आसक्ति मिथ्यात की है। वितराग का मार्ग ऐसा है। समझ में आया? प्रभु। मैं पर की दया पा सकता हूँ, संसार की व्यवस्था कर सकता हूँ, कुटुंब को निभा सकता हूँ, ऐसी कर्ता बुद्धि है, वही मिथ्यात की आसक्ति है। और करना ना आसक्ति नहीं रखना, ये बेन मेल होता नहीं। मगन भाई હતા ને ભાઈ, એમ લગાવતા સ્વામી સરવાચી ને મોરબી વાળા। હા, આમ વેદાંતિ મલાઈ નથી ને એમને જવાચીને એમ કરતા, હુશાર માણસ 12માં ગવર્નર વખાણ્યા થઈ ફેરી, એટલે ઉચ્ચ થઈ ગયા મનમાં। પછી જો શાસ્ત્રમાં સ્વામી સમજાતા કે ક્રિયા કરના પણ ઈચ્છા અભિલાષ ન
ऐसा है ही नहीं, करना की बात है ही नहीं यहाँ। नहीं तो करना भुक्त करना निषेध करना है। हाँ तो निषेध करना पाठ में है नहीं यहाँ। ज्ञानी करोति न एम है ने न वेदेति कर्मम जानाति केवलम किल तत्स्वभावम। શાસ્ત્ર માં લખ્યું છે માનતા નથી, નિર્વિલાસ कर नहीं करे। आप नीचे क्या किया है, शब्दों पद है तो उसने बनाया है, तो समझना चाहिए कि नहीं। हरिहंत्यान हरिहंतान आते हैं शास्त्र में, नमो हरिहंतान, कर्म रूपी हरि को जिसने नाश किया। जड़ का नाश कर सकते आत्मा, जड़ की बड़ी स्वतंत्र है। लिखा है नमो हरिहंताणम, लो उन्होंने कहा हरहंताणम, और ये भाई मैं ही છે હરિહંતાણ બે आता है। એમ કે वाली शत्रु ने न लेना, जैन धर्म शत्रु। अरे हमारा नाम में क्या है, हरि नाम वैरी दुश्मन, आठ कर्म लो, ठीक, जड़ दुश्मन, चैतन से अष्टकर्म दुष्ट कर्म। ये तो भाषा तो आज समझा मुझ क्या है। वैरी तो ऐसा दिया है प्रवचन सार में, अपनी विकारी दशा ये अनिष्ट नहीं वैरी है, अनिष्ट है वो, ऐसा पाठ प्रवचन सार में दिया है। इष्ट अपना निर्मलानंद स्वभाव वो इष्ट है, विकारी अनिष्ट है, ये वैरी है। उसमें दिया नहीं वो भाई दिया याद आगे तो मुझे चिद विलास में लिया भाई, अनुभव प्रकाश का करता शू के भाई दीपचंद जी। जो वैरी अपनी पर्याय में होता है, वैरी पर आप दूर नहीं होता, ऐसा लिया है। नीचे का टीका लिया नहीं, नीचे अधिकार है, व्यवहार नीचे का अधिकार है, बेव्याख्या को। वैरी तो अपनी विरोधी दशा वो वैरी है, परद्र वैरी कहां से आया, परद्र तो बिन चीज है। छठा शास्त्र कैसे बोले नमो हरिहंताणम, वो तो व्यवहार नहीं का कथन है। अज्ञान नाश होता है तब कर्म उसके कारण से कर्म पर्याय पलट कर अकर्म पर्याय हो जाती है, उसको नाश किया ऐसा व्यवहार से कहने में लिखा है ना, तो लिखा है पर कई नहीं का कथन है। शास्त्र का कोई पण शब्द नहीं बिना का होता, का निश्चय का व्यवहार का सद्भूत का असद्भूत, उपचार का अनुपचार नहीं बिना का वाक्य कोई होता नहीं। समझ में आया? ढोल में लिया है, उसमें लिया है वो नई चक्र, नई चक्र है ना, उसमें लिया कि कोई पण वाक्य शास्त्र का नहीं बिना होता नहीं, कई नहीं वो तेरे विचार करना चाहिए। साचो प्रभु समझन जी, कोई पण शास्त्र वितराग का हो, में तो है क्या, वितराग का साथ धवल में लिया है। धवल जो भगवान का ठेठ सूदी के वाणी है ना, वो तो धवल जय धवल माधव, वितराग की वाणी के साथ संबंध है सब टीका का। जैसे स्वामी टीका किया है, सटकन आयम जो है दर्शनाचार्य महाराज पास था जूनागढ़, वो छेली स्थिति में आखिर की स्थिति में दो मुनि को बुलाया, देश छूट जाएगा, ऐसी चीज रह जाएगी। भावलिंगी संत था भगवंत दर्शनाचार्य, पुष्पदत्त ने भूत बड़ी मुनि को बुला दिया उसको। वितराग की वाणी, वो वितराग की साथ संबंध रखते हैं वो वाणी, सटकनायम ना समय सारा दी। समझ में आया? परमेश्वर है सर्वज्ञ देव त्रिलोकनाथ। समो शरण में जो वाणी निकली थी, वही वाणी का संबंध सटकन मार्ग में समय सारा दिया है। ऐसी वाणी है, वो कल्पना की वाणी नहीं। उसमें ऐसा लिखा है, समझ में आया? कोई पण शास्त्र का वाक्य कोई पण नहीं बिना होता नहीं। निश्चय नहीं है, अति शुद्ध निश्चय है कि अशुद्ध निश्चय है, व्यवहार है तो सद्भुत व्यवहार है क्या अशुद्ध व्यवहार है, सद्भुत व्यवहार है तो औपचारिक है क्या अनौपचारिक है। ऐसे नई का ज्ञान बिना शास्त्र का अर्थ करे संगत हो जाएगा। बराबर
समझ में आया? हाँ, हमारे आवेदन भाई ने छ बोलावे 5 बोल भावार्थ शब्दार्थ ये जैसन नहीं द्रव्य संग्रह में आवे कोई पर शब्द नो पहलो शब्दार्थ होना चाहिए, पीछे आगमार्थ, पीछे नयार्थ, पीछे अन्य आगमा कैसे कहते हैं वो पीछे तात्पर्य। एक एक गाथा में 5-5 बोल से अर्थ करना चाहिए, ऐसा पाठ है। द्रव्य संग्रह में है, जैसन आचार टीका में है, प्रवचन परमात्मा प्रकाश में है। हाँ 85 का है। कोई पर शब्द उसका पहला शब्दार्थ पीछे नयार्थ कई नई का वाक्य है, पीछे आगमार्थ आगम क्या कहने चाहते हैं उसमें अनुमति उसका क्या विरोध करते हैं उसका और छेले बाबा 5 तात्पर्य कहने में तात्पर्य तो वितरागता है। समझ में आया? बराबर। ऐसे एक ही गाथा का ऐसा करना चाहिए। एम कहते हैं देखो यहाँ आपने चाले क्या निर्विलास करनी करे ये ऊपर चलिए करे અને વળી કરતા નથી એમ કેના એમ પાછું કીધું છે એવું તો માટે ગાતા ચલતી है। भोग अरुचि घटमाई अरे इंद्राणी ना भोग पण जेने जहर जैसा लगे, जो सुख बुद्धि है तो मिथ्या हो गया। समझ में आया? प्रभु भोग अरुचि घटमाई जैसे सर्प काला 5 हाथ का 7 हाथ का लंबा काला नाग हो देखे, ऐसे ज्ञानी को भोग काला नाग जैसा लगते हैं। बापू ज्ञान इतने क्या संकेत इतने क्या चीज जो तत्व में सुख नहीं उसमें सुख मानना हो तो मिथ्या तत्व है। सुनी जी आप तो सुखी स्थिति है। व्यवहार में भी सुख नहीं, व्यवहार का राज में सुख नहीं और उसमें सुख का कारण नीचे का कारण मानना मिथ्या है। बराबर। लोगों ने यथार्थ तत्व का समझने में बड़ी स्वच्छंद होता है ना, अपनी कल्पना से अर्थ करे तो गड़बड़ करिए तो वितराग का मार्ग है भाई। आनंद केवल ये कहा और उसका मुनिम होना, अब्जोपति का मुनिम होना घाटी करसी ने 25 रुपया पगार वाला मुनिम पण करसी एम सर्वज्ञ परमात्मा एक समय में विकाल ज्ञान ऐसे अनंत केवल यो अनंत तीर्थन करो उसकी मुनिमपना उसकी बात करना, ये मुनिमपना करना ये बड़ी जवाबदारी है उसमें। सत्य प्रभु मंडी जी ये दुकान चलाना वितराग मार्ग की दुकान चलाना, अब्जोपति की दुकान चलाना में घाटी बैठता है कि 25 का पगार 25 रुपया पगार है। ये तो पानी ना कलशा न लई सके उसका मुनिम तो बड़ा हो। साधारण में अत्यारे चलते है कारखाना 2-2 हजार 5-5 हजार का पगार एक माणस का आंदो तो 30 हजार ने आ तो अपने यहाँ भाई ने गोंडल है भाई आवे केवल चंद भाई 2000 ना पगार वाला माणस क्या कारखाना बचाना गोंडल कारखाना 2000 गोरा बोले क्या मोटो तो 25 हजार पगार हो है क्या साधारण मानस काम कर सकते हैं। एम वितराग पंथ सर्वज्ञ देव त्रिलोकनाथ की दुकान धुरंधर की चलती है, वो साधारण मानस का काम है। वो उसका प्रूपणा करना, कथन करना, मिलान विनानी बात करना है। खाली पढ़ने से काम नहीं चले पढ़ा तो 11 में अनंत बार पढ़ा, 9 पूर्व भी अनंत बार पढ़े, उसमें हुआ क्या? मार्ग ऐसा भगवान जी मार्ग का फो अनंत अनंत आनंद ने शांति थी अनंत सादी आनंद जे मार्ग ना फो अनंत आनंद અને એ આનંદ પ્રગટ્યા સાદી આનંદ। હા હા
એ માર્ગના એ ફળના કારણ માર્ગ કોઈ અલૌકિક છે ભાઈ. कहते हैं निरभिलाष करनी करे भोग अरुचि घट माए. बाहर से नहीं अंदर में अरुचि है. क्यों कि धर्मी अपना आत्मा का आनंद का स्वाद लिया है. धर्मी समकीर्ति अपना अतीन्द्रिय आनंद का वेदन किया है. ये आनंद का स्वाद आ गया और दुनिया का भोग उसको जहर जैसा लगता है. मिलान करते हैं तो जहर जैसा लगता है. समझ में आया? प्रभु ये चक्रवर्ती छखंड के राज में रहे एम कहने में आता है. रहते नहीं रहते तो अपना आत्मा में है. राग में नहीं तो राज में कैसे आया? समकीर्ति राग में नहीं रहते. राग से तो विरक्त कहा है. बराबर विरक्त. राग में नहीं तो राज में कहां से आया? ये तो कथन शैली ऐसी है समझाने को कि चखंड में रहते हैं चक्रवर्ती, अखंड में रहते हैं. दिखे था भरत चक्रवर्ती साधन करने जाते थे ना वो सखंड. रोज दिन प्रत्येक सैकड़ों कन्या राजा की आती थी. सैकड़ों का लगन होता था. वैभव में वो भर्तिक वैभव है ना. भर्तिक वैभव है देखा है. भर्तिक वैभव देखा है कि नहीं? ग्रंथ है यहाँ गुजराती हो गया है. वो भर्तिक है ना. तो सब देखा है सब ग्रंथ शास्त्र सब यहाँ पढ़ा है. वो हिंदी में था પછી गुजराती में है. रत्नाकर है ना. सब पहला सब हम तो दिखाए ना पहले ही उसमें दिखाया था. ऐसा ही है ना. साधन करते जाते थे. सैकड़ों कन्या राज कन्या देते थे. लगन दरोज होते थे. लगन क्या? शादी. शादी किसको? हमारी शादी हमारी पास है. वाह प्रभु. विकल्प के साथ शादी नहीं, पर के साथ शादी कहाँ आया? समझ में आया? ये भोग रुचि घटमाएं ताते साधक सीध सम. ये तो नीचे सही मुक्त ये वो कलश में है ना. मोल शुद्ध स्वभाव नियत शुद्ध स्वभाव का वेदन करने वाला यूं ओ सही मुक्त ये वो है. अंदर कलश में है. चलिए आखिर बेटी सही ते एम लिया सो तेज मुक्त एम पास जो मुक्तज है. तो सही सम्यक दर्शन क्या चीज है और सम्यक दर्शन का ध्येय क्या चीज है? अलौकिक की बात है भाई. आगे लोकोत्तर के साथ अलौक दूसरा को मिला है. लौकिक को मिला नहीं होता. वो आया ना पंडित जी. वो तुम बोले ना भी चिन्ह मुद्राधारी की. चिन्ह मुद्राधारी की मेरे रीत लगती है अटपटी. बाहर नारकी कृत दुख भोगत अंदर सुख की गटागटी को. नारकी में क्या है? पंचम गुण स्थान है. नारकी में पंचम गुण स्थान है. चौथा गुण स्थान है. तो बाहर में नारकी कृत भोगत अंदर सुख की गटागटी. सम्यक दर्शन में गटागटी आनंद की है कहते हैं. बराबर. नारकी में तो पंचम गुण स्थान है नहीं. गुनी पड़ा तो है ही नहीं. छपा ऐसा है अपना आनंद स्वरूप भगवान उसका नियत सब पर अंकित है. शुद्ध स्वभाव नियत अपना आनंद स्वभाव का वेदन है. नियत निश्चय से अनुभव है. सही मुक्त ये वो फटाफटी આવે ઘણી બોલાવે છે. ઇન્દ્રની સાથે કહે છતાં આસરું की झटकटाकटी रमत अनेक तरुण परिणत हटा हटाहटी. अशुद्ध परिणति से हटाहटी है. अशुद्ध परिणति जो अपनी है नहीं ऐसा अनुभव हुआ तो अनुभव में अशुद्ध परिणति तो हटाहटी चलती जाती नाशज हो जाती है. वो आया न माथे
अपहारी कर्म रोग को। ये रोग है। पुण्य में पाप का भाव ये रोग है। अरे रोग की इच्छा कोई होती है कोई को? ताते साधक सिद्ध सम, इससे इस सिद्ध भगवान के समान मात्र ज्ञाता दृष्टा है। लो करता भोगता नहीं, लो खुलासा तो किया, ऐसा तो क्या ही लखान में आवे। अज्ञानी जीव कर्म का करता भोगता इसका कारण, उलामा ज्ञानी करता भोगता नहीं उसका कारण कहा था। यहाँ अज्ञानी कर्म का करता भोगता इसका कारण। ये 7वां कलश है। 7वां है ना नीचे कलश। ये तू कर्ता आत्मनम पश्यन्ति तमसा तथा सामान्य जनवत तेषाम न मोक्षोपि मोक्षताम। आयु विष्णु विष्णु लोग ईश्वर को कर्ता मानते हैं, वो उसका श्लोक है सर्वशुद्ध में। कर्ता मानते जगत का ईश्वर करता है, ऐसे मानने वाला को हमारा जैन नाम धरा के साधु हो और छकाई का जीव की हम रक्षा कर सकते हैं, तो दो ही मान्यता एक सरकी हुई। पंडित जी, विष्णु ने जैन विष्णु कर्ता मानते हैं जगत को, ऐसे यहाँ कहते कि हमारा जैन साधु होकर आम यादव उसमें आ गया, आत्मा में जिनमती द्रव्य चारित्र करनी બધું द्रव्य चारित्र पाले, पंचमावर्त पाले और उसका कर्ता हो, पंचमावर्त की क्रिया का करता हो। विष्णु जगत का कर्ता माने या पंचमावर्त का कर्ता माने, दो ही मिथ्या दृष्टि एक सरका है। है नहीं, स्वतंत्र चीज है जगत की। कर्ता कौन कहां से आया? कर्ता आत्मा अपनी पर आएगा। द्रव्य का तो कर्ता कोई है ही नहीं। अनादि अनंत स्वतः सिद्ध है, अस्तित्व है कि नहीं उसका? अस्तित्व के कारण अपने से है, पर से है। वो सामान्य सगुण में आते हैं, अस्तित्व गुण आते हैं, परमेश्वर गुण, द्रव्यत्व गुण। आई तो कहते हैं कि अज्ञानी जीव कर्म का कर्ता भोगता है, उसका कारण क्या? वो कहते हैं जो ही अंध विकल मिथ्यात धर मृषा सकल विकल्प उपजावत गही कंत पक्ष आत्म को करता मानी अधो मुख दावत। क्यों जिनमती जैन संप्रदाय में आया थे, द्रव्य चारित्र कर, द्रव्य चारित्र पंच मामले 26 गुण करनी करता कहावत। ये चारित्र करने करीने करनी करता, ये करनी मैं किया ऐसा मानते हैं। वंचित मुक्ति तथापि मूढ़मती, जो हमारा शब्द आया वो तो दया का शब्द है। वंचित मुक्ति तथापि मूढ़मती बिन संकित भव पार न पावत। समझ में आया? हृदय का अंधा अज्ञानी जीव जो ही अंध विकल व्याकुल होकर मिथ्या से मन में अनेक प्रकार के झूठे विकल्प उत्पन्न करते हैं। मैं दया पाऊं, मैं पर की हिंसा करूं, पर को समझा दूं, पर मेरे से समझते हैं, ऐसा जो विकल्प मिथ्यात का अंध विकल्प मिथ्यात, वो मिथ्यात का सेवने वाला है। हरे कृष्ण भाई, हृदय का अंधा ज्ञानी जी मिथ्यात से व्याकुल होकर विपरीत मानता
मुस्का कर दूं, मुस्का कर दूं, छकाई की रक्षा कर दूं। तो छकाई की रक्षा करना माना तो छकाई की करता हुआ, वो ईश्वर का करता, छकाई की करता, कर्ता में देख के बुद्धि हुई, समान हुआ। सर्वविशुद्ध अधिकार में आया उसमें, समझ में आया? हाँ, कुछ पक्ष की बात नहीं, वस्तु का स्वरूप की बात है। समझ में आया? वो एक बात ऐसा आया था छापा में, कर्ता ईश्वर विष्णु और जैन में फेर नहीं, वो स्वार्थी लोग को दो को भिन्न कर दिया है, ऐसा आया था छापा में। ऐसा है ही नहीं भाई। हाँ, छापा में आया था, नाम नहीं देते, नाम एम के दो एक है, दो में फेर नहीं, फेर तो साथी लोग को भी फेर कर दिया। आई तो परमात्मा कुंकुंदाचार्य देव अने सर्वज्ञ देव हम कहते हैं कि जगत में 363 पाखंड है, 363 पाखंड है, मिथ्या दृष्टि है, पर का कर्ता मानते है, ऐसा पाखंडी है। तो कहते हैं कि पर को मिथ्याती कहना ये अपने पूती मिथ्याती है कहते हैं। भगवान ने कहा 363 पाखंड है जगत में, तुमसे क्रियावादी अक्रियावादी आते हैं, विनयवादी अज्ञानवादी आते, गिनती है कि नहीं? अरे भगवान बापू मारत को ऐसा है भाई, घना पण 363 पाखंड है, गणतरी है शास्त्र में सब, क्रियावादी अक्रियावादी विनयवादी अज्ञानवादी गोमटसार में सब भेद है, सब मेरा भेद है सब। ये अंधविकार मिथ्या धर मृषा सकल विकल्प उपजावत झूठा विकल्प अज्ञानी गही एकांत पक्ष आत्म को करता मानी अधोमुख धावत। ये तो अंजमती अपेक्षा है बात कही, अरे उसका सिद्धांत मिलाते हैं। क्यों जिनमती जैन में आवे छते, जिनका व्यवहार क्रिया चारित्र करते छते है न, દ્રઢ ચારિત્ર કર, વ્યવહાર ક્રિયા પંચ મહાવર 28 મૂળ ગુણ વ્યવહાર ચારિત્ર बराबर करे। हाँ, पण ये राग का करता होता है क्रिया का। वस्तु का स्वरूप तो है बराबर, कोई की बनाया है नहीं दिया कि हमारा जन्म स्वाधीन। ऐसा है, जिनमती भी द्रव्य चारित्र है, लिखे अंदर जो कर्म का करता अपन पर द्रव्य व्यवहार समकीटी भाव चारित्र के बिना आता है। भगवान को मानते हैं, देवगुरु शास्त्र को मानते हैं, व्यवहार से पर पंचमावत का परिणाम का करता होता है द्रव्य चारित्र का, मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया? व्यवहार समकीटी मैंने देखा है, व्यवहार समकीटी ये खरी क्या भाव चारित्र के बिना बाह्य चारित्र स्वीकार करके शुभ क्रिया से कर्म का करता कहलाता है। देखो, शुभ क्रिया हमें करते हैं, हम करते हैं, हमारी क्रिया है, हमारे बराबर करना चाहिए। मोक्ष मार्ग पर लिखा है कि जिसको करता है तो उसकी ममता है, तो मेरा हुआ, एक बुद्धि हुई भाई आवे थे ना, आत्मा जन्म आवे मोक्ष मार्ग पर आ बाजू समाज ये कहीं शुभ का कर्ता माने तो ममता हुई, तो मेरा है माना बराबर, तो उसका कर्म हुआ हो, कार्य हुआ तो कर्ता कर्म हो गया, कर्ता कर्म तो ज्ञानी है वो तो बराबर। समझ में आया? द्रव्य चारित्र को करते कहावत वंचित मुक्ति तथापि न मूढ़मती बिन समकित वो पार न पावत। विशेष आया प्रमाण वचन गुरुदेव।